Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome to all newcomers viewers. Hope you are all fine and enjoying my videos from my channel, and I hope these videos are very helpful for you in your exam. Today we discuss BS Mathematics Semester 1 course code 322 and 307 Introduction to Statistical Theory 1 course code 322 or 307. We discuss first question. Mod is Meyer average, correlation, dispersion, and dependence. So correct answer is average. Mod is Meyer is average Meyer. Next question. Variance can never be first option all of these negative, zeros, positive. So variance can never be negative. So B option is correct. Next question is statistical theory 1 कोर्स कोड 322 हम डिस्कस कर रहे हैं. क्वेश्चन हमारे पास है वेरिएंस इज ऑलवेज डैश अ वैल्यू ऑल ऑफ दिस फिक्स्ड नेगेटिव और पॉजिटिव. वेरिएंस जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ b is equal to 0 then independent variable is not all of these demanding, important, significant. So correct answer is significant. Next हमारे पास क्वेश्चन है dash intended to promote independence, individualism and self expression. First option broad socialization, all resocialization, narrow socialization. So our correct answer is broad socialization. Option A is correct. Next हमारे पास MCQs है which average measure is most appropriate? Mod, variance, median and mean. So correct answer is mod is correct answer. Next we see MCQs. By social change is meant only such dash as occur in social organization. Option 1 manipulation, both, none, and alteration. So correct answer is D, alteration. Next question. Values, traditions, and beliefs are all of examples. Material culture, group, non-material culture, and belief. So correct answer is material culture. Next, in 1947, migration is the form of dash both B and C. Revolutionary change, reformative social change is correct answer. Next question है if one variable continues negatively to the dependent variable, then the value of b is A option is correct है, negative is correct. Next हमारे पास है the number of students in a class is an example of discrete variable. Discrete variable is an correct option. Discrete variable. Next हमारे पास क्वेश्चन है numerical characteristics obtained from population is known as statistic है तो इसका करेक्ट आंसर है पैरामीटर इज करेक्ट आंसर, पैरामीटर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिस्टोग्राम इज a graph of discrete data. करेक्ट आंसर इज डिस्क्रीट डाटा. ये कंटिन्यूस के लिए भी होता है, अगर इसमें ऑप्शन कंटिन्यूस होता तो ये कंटिन्यूस के लिए भी यूज होता है हिस्टोग्राम. नेक्स्ट हमारे पास है अ क्वांटिटी विच कैन नॉट
vary from one individual to another individual. So correct answer is variable. Next MCQ है to study the correlation between variable we use regression. Correct answer is regression है. B option correlation, C option variance and mean. So regression is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मीन. ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मीन मल्टीप्लाई बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय मॉड. तो देन डाटा इज स्क्यूड. सी ऑप्शन इज करेक्ट है. करेक्शन क्या है? स्क्यूड, SKEWED. स्क्यूड इज करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन सिमेट्रिकल, नॉन ऑफ दीज और ये मीन. सो नेक्स्ट MCQs की जाने मूव करते हैं. चार्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर क्वालिटेटिव डाटा. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्वालिटेटिव डाटा. और बी ऑप्शन है क्वांटिटेटिव डाटा है. ऑल ऑफ दीज एनी ऑफ टाइप ऑफ डाटा. सो बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट रेंज इज द डिफरेंस ऑफ रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो टू नंबर्स, एनी नंबर्स, नन ऑफ दीज. सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू से रेंज निकाला जाता है. नेक्स्ट है व्हेन टू वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड देन द आंसर ऑफ कोरिलेशन इज क्लोज टू 1. नेक्स्ट है if the dispersion is small then standard deviation is also small. So correct answer is D option is small is correct. Next है हमारे पास mean of 2 is. तो मीन क्या है इसका? 2 सारी वैल्यूज़ को ऐड करें और जितनी वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास मीन का कुलिया है समेशन x बार ओवर n. नेक्स्ट हमारे पास है इन विच measure of average the data will be arranged in ascending or descending. mean, all of these, mod और. तो इसका करेक्ट आंसर जो है मीडियन है. मीडियन में हम डाटा को अरेंज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर इज मीडियन. मीडियन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट the lifetime of electrical machines is an example of count data, discrete data. All of these continuous data is correct answer. Next gender is a variable dash ordinal, normal, quantitative, continuous. So continuous is correct answer है. Next variance of 2 6 times 2 है. So variance is 2 is correct answer. नेक्स्ट हमारे पास है if mean is equal to median is equal to mod then data is symmetrical. नेक्स्ट है correlation range is from all of these -1 to +1 होता है. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है in a symmetrical data if mean is equal to 10 then median is equal to mod median 10 mod 10. So all option is correct, all of these is correct. Next for qualitative data we use correlation चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट. तो सारे चार्ट जो हैं इसमें यूज़ होते हैं जी. इसमें सब चार्ट्स जो हैं हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोग्राम जो होती है ओनली क्वांटिटेटिव के लिए यूज़ होती है. नेक्स्ट हमारे पास है the equation of trajectory is y is equal to equation of trajectory y is equal to bx minus cx का स्क्वायर.
So D option is correct. Next, if two variables are not correlated, then correlation is क्या है इसका, 0 का. Next, when there is perfect relationship between variables, then the correlation is 1. Next, mod of 3 4 5 6 6 is 6 है. मॉड जो होता है, जो गिवन डाटा में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है वो मॉड होता है. तो 6 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए 6 मॉड है. इन हिस्टोग्राम वी यूज़ फ्रीक्वेंसी एट ऑल ऑफ दीज. एट ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे. इन हिस्टोग्राम में वो यूज़ फ्रीक्वेंसी को, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. तो एफ को आप क्या लिखते हैं, वाई एक्सेस के अलोंग लेते हैं. ये ओरिजिन हो गया. नेक्स्ट है क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. वेरिएबल जो होता है वो चेंज होता है वन टू अनदर. द वेलोसिटी ऑफ राउटर shows that dash is necessary to prevent the slipping to the tangential of an object on the wall of the road. So इसका करेक्ट आंसर जो है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड वॉल इज करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 2 2 3 3 इज क्या है, बाइनोमियल है. क्या है, बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें माड 2 बार आया, 3 बार आ जाएगा तो ट्राइनोमियल होगा. इसमें माड 2 माड है, तो ये बाई मॉडल हो गया है, बाई मॉडल हो गया. नेक्स्ट है व्हेन वर्क डन बाय अ फेस फॉर अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज डैश, देन वी कैन नॉट एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी विद दैट इक्वल टू 0 इज करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास है इफ बी इज इक्वल टू 0 देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट है regression coefficient can take any values, negative, positive. तो all of these is correct answer है. नेक्स्ट हमारे पास मॉड ऑफ 1 2 3 4 5 इज, तो मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है, तो कोई वैल्यू भी सबसे ज़्यादा बार नहीं आ रही, तो इसलिए नो मॉड इज करेक्ट. नेक्स्ट है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिस्टेड ऑफ बिलो इज, स्टैंडर्ड डेविएशन है, रेंज है, वेरिएंस है. सो मीन इज करेक्ट आंसर है. मीन ऑफ 5 5 5, तो मीन निकालने के लिए इसकी वैल्यूज कितनी है, 6 हैं. तो आप 2 इधर से छोड़ दें, 2 इधर से, जो सेंटर वाली 2 ऐड करें, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 इज इक्वल टू 5. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फॉर क्वांटिटेटिव डाटा वो यूज बार चार्ट, पाई चार्ट, ऑल ऑफ दीज. हिस्टोग्राम जो है इज करेक्ट. हिस्टोग्राम जो है ओनली क्वांटिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन ऑल ऑफ दी 0 2 1. सो 1 इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है विच ड्रॉबैक इज प्रेजेंट इन वेरिएंस remain same the measurement unit. Next mod values for 2 3 4 5 6, तो नो mod, कोई वैल्यू ज़्यादा बार नहीं आ रही, इसलिए कोई mod नहीं है. patient type is an example of fixed data, none of these continued. So correct answer nominal data, ब्लड से रिलेटेड है ये. मीडियन ऑफ 1 2 3, तो 3 रकमें एक इधर से छोड़ें एक इधर से छोड़ें, जो सेंटर वाली वैल्यू है वो 2 है, तो 2 इज करेक्ट आंसर. फॉर कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर डाटा वो यूज कोरिलेशन वो यूज. नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स. 4 मेजरमेंट स्केल्स आर
नेक्स्ट है हमारे पास विच एवरेज मेजर प्रोवाइड्स मल्टीपल आंसर। तो मॉड में एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, मॉड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एवरेज मेजर इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट मीडियन, मीन, मॉड एंड वेरियंस। करेक्ट ऑप्शन इज वेरियंस। नेक्स्ट है हमारे पास एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द होल क्लास इज पैरामीटर है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर डाटा वो यूज़ कोरिलेशन को यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। जो डाटा आपको फिगर्स में 1 2 3 4 5 नंबर्स में दिया होता है वो डिस्क्रीट होता है। जो ग्रुप्स की फॉर्म में दिया होता है 1 से 5 तलबा का ग्रुप या इस तरह को इनडिस्क्रीट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ वन वेरिएबल कंट्रीब्यूट positively to the dependent variable then the value of b is पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास है if scatter diagram is showing upward trend then the relation is positive। नेक्स्ट हमारे पास है statistics results are average is correct। नेक्स्ट है which dispersion measure is most appropriate। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी ऑप्शन इज करेक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज करेक्ट आंसर। इसको SDB लिख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोरिलेशन इज द डैश ऑफ द वेरिएबल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ 2 4 3 2 4 5 6 8 9 इज, तो 5 है इज करेक्ट आंसर। इसमें आधी वैल्यू इधर छोड़े, आधी वैल्यू दो सेंटर वाली जो होता है वो मीडियन होता है। तो क्या है 3 2 4 5 6 8 और 7 2 4 6 7 है। तो आप 3 वैल्यूज इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें तो 5 बच गया है। ये क्या होगा, इसका मीडियन होगा। नेक्स्ट है एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज स्टैटिस्टिक है। इफ द डिस्पर्शन इज स्मॉल द स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन जी वो भी स्मॉल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेशन कैन बी, फर्स्ट ऑप्शन 0 1 -1, सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट कांस्टेंट कैन एज्यूम वैल्यू। कांस्टेंट में एक ही वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज अ नंबर दैट इज फिक्स्ड वैल्यू इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वेरिएबल कैन एज्यूम डिफरेंट वैल्यूज इज करेक्ट आंसर। इफ b is negative then scatter diagram is downward is correct answer। middle value of the range data set is called median। जो होता है मिडल वैल्यू को मीडियन बोलते हैं रेंज डाटा की। तो मॉड ऑफ ये 5 ही सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो 5 ही इसका मॉड है। नेक्स्ट इफ डाटा कंटेन्स 2 3 4 6 बार 3 एंड 2 हो तो दिन इसका करेक्ट आंसर जो है सम टाइम वेरिएबल्स और सम टाइम फिक्स्ड, तो इसका बोथ जो है वो करेक्ट है, बोथ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ b इज पॉजिटिव देन स्कैटर डायग्राम इज अपवर्ड होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा कैन बी टेकन बाय यूजिंग क्वेश्चनर मेथड से। टू टेक द डिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल वो यूज कोरिलेशन।
Next, scatters in a pie chart indicates total angle is correct आंसर है इसमें टोटल एंगल लिखा हुआ है टोटल एंगल। तो आपको पाई ग्राफ के बारे में बता देते हैं। ये आपके पास एक सर्कल हो सॉरी ये आपके पास एक सर्कल है। तो पाई चार्ट सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं। तो ये इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है डिफरेंट एंगल्स में पाई चार्ट। तो इंटरप्रिटेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल होती हैं अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल होती हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव योर ओपिनियन इन योर कमेंट्स बॉक्स। If you find any wrong question, please inform in comments so we can correct it. Thank you for watching. If you like this video, please subscribe my channel Math Skill Sets. My WhatsApp number 0303426585. Thank you for watching once again. If you like this video, please share it on your social media so other students can benefit from this. Allah Hafiz.